Namaskar, good morning, my dear student and friend. Today, we are going to read our chapter from beginning of the time. In this chapter, we have already discussed about various topics like the human evolution, primates, hominid, hominids, and their expansion, regional and replacement model. We have already discussed. Today, we are going to talk about the way which men obtaining their food. I mean to say that topic is early human ways of obtaining food. In this topic, we will see the way which adapted men survive their life. No doubt, the food is necessary need for everyone, for animal being, for human being, for everyone who is alive on earth. So, it was challenge for the early human to collect the food. He started their life during 24 Maya. He think that without food, without completed it, he cannot survive properly. It is genuine. So early human would have obtained food through a number of ways such as gathering, hunting, scavenging and fishing. There were four processes which we find behalf of the evidence, which we find behalf of the archaeological findings. There remains bone, part, burnt, fishes, bones and such type of others which we have find on the various places, various archaeosites which we collect, and behalf of that we are seeing. We have evidence about it. So that's why we categorize into four parts: hunting, gathering, scavenging and fishing. The gathering was practiced. It was very easy process. Men started gathering in the initial form. When you don't know about that proper form of the hunting, it depend upon their life, on the nature. He collecting the various foods from plants, seeds and such type of others, natural things. It is very strange that he know about that. कैसे वो जाना होगा इन चीज़ों के बारे में, किस तरीके से उनको कलेक्ट किया होगा और फिर उनका इस्तेमाल वो कैसे किया होगा. ये एक अपने में एक महत्वपूर्ण बात थी. That gathering was practice is the generally assumed rather than the conclusively established, as there is a very little direct evidence for it. While we get a fair amount of fossilized plant remains are relatively rare. The only other way of the getting information about plant intake would be if plant remain were the accidentally born. This process resulted in the carbonization. Carbonization, it is the scientific process in which, as we know, कि नेचुरली आग लगती है और हजारों हजार साल बाद वो वस्तुएं, पेड़ पौधे जल करके एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाती हैं, कोयला बन जाती हैं. ये प्रोसेस कार्बनाइजेशन कहलाती है. In this form, the organic matter is preserved for a long span of time. However, so far archaeologists have not found much evidences of the carbonized form, carbonized seed for this very early period. In recent year, the term hunting has been under discussion. It is a very important thing. The second process which is the hunting.
हंटिंग क्या थी, मानव ने इसका विकास कैसे किया होगा, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हंटिंग के बारे में लोगों ने, पुरातत्वविदों ने, नृत्य शास्त्रियों ने और विद्वानों ने तमाम डिस्कस और डिबेट किया। इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ होगा, मानव ने इसको कैसे किया होगा, और फिर इसका मानव जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा होगा। इन सारी चीजों पे हमने देखा। इन द रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स। Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged for foraged for meat and the marrow from the carcasses of the animals that had died naturally or had been killed by other predators. It is equally possible that small mammals such as the rodents, bird, the reptiles and even insects were eaten by early hominids. एकदम ठीक वैसे ही वो उन चीजों को खाता था, उन प्राणियों को खाने लगा जो मांस पे अपना जीवन निर्भर करते थे। वो चूहे, चचुंदर, जानवरों को खाकर के अपना जीवन जीने लगा। एक बड़ी हमारे पास विचित्र बात थी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मानव का विकास एक प्राइमेट से हुआ। प्राइमेट्स वह एक कैसी प्रजाति थी, एक अर्ली ह्यूमन स्पेसीज के रूप में बाहर आई। जैसा सामान्य भाषा में कहते हैं कि बंदर है। आज बंदर मांस नहीं खाते, लेकिन ये प्राइमेट्स अपने जीवन को जीने के लिए मांस का उपभोग करने लगा, खाने लगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हुआ। और यहां से मानव के विकास में एक नया बदलाव आया। वो कार्निवोरस, अब वो सब चीजें खाने लगा, पेड़ पत्ते, पौधे, बीज, पत्तियां, मांस, इन सारी चीजों के साथ वो अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, एक सबसे बड़ी बात कि जो हंटिंग के, हमने एक सीधे शब्दों में इतिहासकारों ने मान लिया कि ठीक है वो हंटिंग करता था, लेकिन क्या ये हंटिंग कब शुरू हुई, हंटिंग के हमारे पास कोई एविडेंस है या नहीं है, इन पे भी चर्चा करना, इनके लिए भी क्लियर एविडेंस का होना बहुत जरूरी था। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया। इतिहासकारों ने इसके लिए तमाम एविडेंस जुटाए। एविडेंस मिला, एविडेंस के आधार पे ये क्लियरिफाई हुआ कि हंटिंग मानव ने शुरुआत किया। हम मानव के इतिहास को लिखते समय कहते हैं कि मानव का विकास हुआ, मानव जंगल से निकला, फिर वो गैदरिंग किया, पेड़ पत्तियां, बीज को इकट्ठा किया, खाना शुरू किया, और फिर वो अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ होगा और शिकार करना शुरू किया होगा। लेकिन इस शिकार के एविडेंस कहां से मिले? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, विदाउट एविडेंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टोरी, एनी हिस्ट्री। बिना एविडेंस के हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। इतिहास में हर चीजों के लिए एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके लिए काम किया और फिर उन्होंने ढूंढा। Hunting probably began later, about 5 lakh years ago. The earliest clear evidence for the deliberate, the planned hunting and butchery of large mammal comes from two sites. The Box Grove in southern England 5 lakh years ago, and second, the place belonged to Germany, that was 4 lakh years ago. The place name was Wortes-Julas, Dolny Wortes-Julas. इन दो जगहों पे उसने क्लियर एविडेंस मिला। जर्मनी के वर्टेस, डोल्नी वर्टेस-जुलास नामक प्लेस जो नदी के किनारे था, और बॉक्सबर्ग जो इंग्लैंड में था, वहां पे इनके एविडेंस मिले। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इन चीजों में मानव ने जो तरीका अपनाया वो अपने में यूनिक था। मानव ने भी जिन तरीकों से हंटिंग करना शुरू किया वो अपने में टोटल प्लानिंग के थ्रू उन्होंने ये शुरू किया था शिकार करना।
अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठेगा कि प्लांट करने कैसे इतिहासकार ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्लांट करके हंटिंग शुरू की होगी? तो वी हैव आंसर कि कैसे उन्होंने प्लान किया होगा। प्लान करने के बारे में उन्होंने जो हमारे पास एविडेंस मिले वो एविडेंस क्लियर था कि कह रहा था स्पष्ट रूप से साफ साफ कि जिस तरीके से उन्होंने जानवरों के ऊपर मैनुअली ऑब्जर्वेशन रखा और फिर उसके आधार पर उनके शिकार करने की जगह को ट्रेस आउट किया और फिर शिकार किया। इट मीन्स वी हैव द क्लियर एविडेंस, आर्कियोलॉजिस्ट हैव क्लियर एविडेंस that he first focused particular points where the animals assembled in huge amount, like river, like the grassland, like some other natural places where they assembled. एक निश्चित जगह जहां पे वो कलेक्ट होते होंगे, असेंबल होते होंगे, जहां शिकार करना आसान रहता होगा। इन चीजों को पहले उन्होंने ट्रेस आउट किया, देखा और फिर उस जगह पे उन्होंने ग्रुप में शिकार करने की परंपरा शुरू की, स्टार्ट किया होगा। ये अपने में एक विचित्र बात थी। फ्रॉम अबाउट 35,000 ईयर एगो देयर इज एविडेंस ऑफ प्लांट हंटिंग फ्रॉम सम यूरोपियन साइट्स, सम साइट एज दोल्नी वेस्टोनी that is situated in the Czech Republic, which was near a river seen to have been the deliberately chosen by early people. Why they chosen particular that place? Because they know that कि पानी जानवरों के लिए जरूरी है, नदियों के किनारे वो आते होंगे और यहां से हम आसानी से शिकार कर सकते, हमें जानवरों के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा, हमें उनका शिकार करने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस प्लेस को ट्रेस आउट किया, उसको चूज किया। हर्ड्स ऑफ द माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज रिमाइंडर, सच एज द वेरियस एनिमल्स लाइक रेंडियर, लाइक हॉर्सेस, like the big buffaloes and some other animals which they assembled नदियों के किनारे, जो नदियों के किनारे वो आते रहे होंगे। रेंडियर हिरन की प्रजाति का एक जानवर था। ऐसे ही बड़े बफेलो जो आज अमेरिका से विलुप्त हो गए, जिनके बारे में हम चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल में पढ़ेंगे, उन चीजों के बारे में डिटेल करेंगे और फिर धीरे धीरे इन जानवरों को शिकार करने के लिए पर्टिकुलर प्लेस को चूज करना शुरू कर दिया और यहीं से शिकार की परंपरा शुरुआत हो गई। अब यहां पे एक प्रश्न और उठता है कि उन्होंने नदियों के किनारे से शिकार तो करना सीख लिया, जहां पे उन्होंने बड़े पैमाने पे इन जानवरों को मारा, शिकार किया। अब इन जानवरों के मारने के बाद उनके पास एक कौन इन जानवरों के मांस को निकालता होगा, कौन, सबके अपने अपने क्या क्या कार्य होंगे, मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग वर्क डिवाइड थे या नहीं थे, इन बातों पे भी जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, उन बातों के भी पे भी विचार करना आवश्यक है। एक चीज तो एकदम क्लियर है, द चॉइस ऑफ सच साइट्स indicates that the people knew about the movement of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. उन्हें ये बात पता थी कि अगर ये मानव एक जानवर एक साथ वहां आएंगे तो बड़े पैमाने पर उसकी हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद श्रम का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर वो कर लेंगे। Did you mean the women have different role in gathering, scavenging, hunting and fishing? We do not really know. Today we find the society that live by hunting and gathering where women and men undertake a range of different activities. But as well as see later in the chapter, it is also possible to suggest the parallels with the past. जैसा कि आज हम भी देखते हैं वर्तमान समय में कि मानव ने किस तरीके से किया होगा।
शिकार किया होगा पुरुष वर्ग ने, फिर धीरे धीरे उन शिकार को घर में लाया होगा और महिलाएं उस शिकार से मांस को निकाल करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में काम में है। इस तरह की व्यवस्था आज भी है और हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट प्रोसेस रनिंग ऑन दैट टाइम। इस तरह की व्यवस्था उस समय चलती रही होगी, शिकार की परंपरा विकसित हो गई। 3, स्कैवेंजिंग का जो सारा काम था, मानव शरीर से मांस कुचलना निकालना, ये सारा काम वो करती है। फिशिंग के भी एविडेंस हमारे पास है और इस तरीके से हम बात करते, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मानव ने अपने जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव देयर लाइफ, started 4 process to collect food. There were 4 paths. There were 4 steps which they used. उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया. That was hunting, that was scavenging, that was gathering and last that was fishing. 4 तरीके के एविडेंस हमारे पास क्लियर है. इन चीजों से हमें मानव के शिकार की पूरी व्यवस्था दिखाई देती है. योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने शिकार किया और शिकार करने के जो हमारे पास एविडेंस थे 5 लाख साल पहले इंग्लैंड के वॉक्स ग्रोव से और 4 लाख पहले जर्मनी के सोनिंजन प्रांत से. जर्मनी के सोनिंजन, आई मीन टू से दैट वी हैव डिस्कस द 2 places where we find the clear evidence of hunting. First, that was Waxwork in England, the 5 lakh year ago, and second, that was Solingen, which was in Germany 4 lakh year ago. 4 लाख साल पहले की क्लियर एविडेंस हमारे पास थे. यहां से हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इन्होंने शिकार करने की हमारे पास एविडेंस थे. अब हम दूसरे स्टेप पे बात किए. हमने कहा कि किस तरीके से उन्होंने शिकार किया होगा, शिकार करने के लिए उन्होंने क्या युक्ति लगाई होगी, कौन सा दिमाग यूज किया होगा. तो हमारे पास उसके लिए भी एक एविडेंस है. हमने बात की कि चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में एक प्लेस है दोलनी वॉटेनाइस. जो दोलनी के पास जो नदी के किनारे एक जगह है, वहां पे उन्होंने देखा कि सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं. दे असेंबल्ड पर्टिकुलर प्लेस. इट इज वेरी इजी फॉर हंटिंग विदाउट एनी हार्ड वर्क. ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं. एक जगह इकट्ठा होंगे, हम आसानी से उसका शिकार कर लेंगे और बड़े पैमाने पे विद अ लार्ज स्केल. हम भी एकदम बड़े पैमाने का शिकार कर लेंगे और फिर उसको अपने यूज में लाएंगे. तो ये जो परंपरा स्टार्ट हुई, शिकार की परंपरा स्टार्ट हुई, इसके एविडेंस क्लियर मिले. बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में क्लियर एविडेंस है फिशिंग के, मछली पकड़ने के, मछलियों के कांटे हमें क्लियर मिले. हमने एक बात और की, गैदरिंग की, और हमने कहा किस तरीके से उन्होंने जो भोजन की व्यवस्था करते थे, इट मीन्स फूडिंग के लिए जो पहली प्रोसेस थी गैदरिंग, वो एकदम इजी प्रोसेस थी, सामान्य प्रोसेस थी. इस प्रोसेस में वो प्राकृतिक वस्तुओं को, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को, गुठलियां, बेर, फल, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे और फिर उससे अपना जीवन जीते होंगे. एक ऐसा अनुमान सामान्यतः लगाया जा सकता है. स्कैवेंजिंग पे भी बात कर लें. 3rd पॉइंट जो था, मैंने आपसे कहा कि ये स्कैवेंजिंग का मतलब होता है, जैसे साफ साफ है, एक वर्ड है स्कैवेंजर्स. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस इन साइंस बुक. स्कैवेंजर्स, गिद्ध, ये क्या है? स्कैवेंजर्स मांस को नोच नोच के खाता है. मरे हुए जानवरों के मांस को नोच के खाना, मरे हुए जानवरों को या मार कर लाए हुए जानवरों के शरीर से मांस को निकालना, ये दोनों प्रोसेस स्कैवेंजिंग में आते हैं. मानो उसने शिकार करने के बाद या किसी और के शिकार के मांस को स्कैवेंज करना, निकालना और फिर उस पर अपना जीवन यापन करना, दैट इज स्कैवेंजिंग. ये स्कैवेंजिंग परंपरा रही होगी. इस तरीके से अर्ली ह्यूमन अपनी लाइफ को जीता था. इस तरीके से मानव ने अपने विकास की कहानी को आगे बढ़ाई, अपने को सुरक्षित किया, अपने को मजबूत बनाया नेचर से लड़ने के लिए.
और फिर इसी प्रोसेस में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से उसने इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, शिकार करने के लिए उसने टूल्स बनाए, टूल्स का निर्माण किया. I have already discussed my previous video that the Homo habilis human, that was the first human who made tool. And upright human erectus he uses in the very vast level. होमो हैबिलिस ने टूल बनाई और होमो इरेक्टस उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, टूल टेक्निक. लेकिन टूल टेक्निक के पहले हमें एक चीज को, एक टॉपिक को और पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है. उस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से मानव अपने रहने की व्यवस्था करता है. अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव एंड एयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन दिस टॉपिक वी विल रीड about the human, how it start their life from tree to cave, cave to open air. Topic is very interesting. This topic also based on the archaeological findings. हम इन चीजों को भी देखेंगे किस तरीके से उसने अपने जीवन को जीने के लिए कहाँ इकट्ठे हुए होंगे, उसके लिए क्या एविडेंस है, और हम उस एविडेंस के आधार पर अपनी बातों को रखने का, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे. वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज द क्लियर एविडेंस. अगेन आई एम सेइंग, विदाउट एविडेंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्ट्री. बिना एविडेंस की हिस्ट्री नहीं होती. हम अपनी बातों को कहने के लिए एविडेंस का सहारा हमें लेना पड़ेगा, और एविडेंस प्रूव करेंगे कि अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव एंड ओपन एयर कैसे गए होंगे. क्या उनका इकाई चले गए होंगे, या उसमें कोई तारतम्यता होगी, कोई कनेक्शन होगा. इन सारी चीजों पे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि टूल टेक्निक उससे कैसे कनेक्ट हो रही है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.